Hello everyone. Welcome to the second lecture of this lecture series. First of all, I would like to thank Alcom Institute for taking this initiative and inspiring us to conduct these lectures. Alcom Institute is an institute based in Ahmedabad, just opposite to the Vishwakarma Government Engineering College, Chandkheda, who is working with students of specialization electrical engineering, electronics engineering and instrumentation engineering. Students who are working or who are preparing for competitive exams, they reach out to us and we are working with them. Not just that, many students who are seeking concepts of core subjects so that can help them for their industrial career as well as to crack their placements, not to mention that placements, of course. We are gladly working with those students as well. Talking about our team consists of highly qualified and highly motivated faculties who are graduated from various IITs, and of course they are well experienced in the respective fields as far as coaching is concerned. Moving ahead, talking about myself, my name is Raviraj. I completed my BTech from Nirma University back in 2011. After a short stint of industrial experience, I decided to give up that job and started preparing for my master's. I completed my master's from SUNIT Surat in 2015. Since then, I am working for my PhD from IIT Bombay. About GATE coaching, I have been actively participated GATE coaching since 2014, associated with many institutions, taught in many cities, as you can see, and of course mentored more than 2500 students. So yes, you can say I'm a bit experienced as far as discussion with diversified students is concerned. That is about me. Let's without wasting any time, let's jump ahead to discussion of the topic. Of course, in the last lecture, we had discussed calculation of inductance and capacitance of transmission line. Today, we are going to conclude this chapter, transmission line concept modeling and performance, which carries approximately 15% weightage as we have seen in last lecture. So today, what we are going to discuss? We are going to discuss modeling and performance of transmission line. Right. So, all right, let's begin with the basic question which was asked in 2006. You can see that on the screen. Let's read the question first. The concept of an electrically short, medium, and long line is primarily based on dash. Think about this. Quickly think of the answer and then we will discuss about it. All right. So the options are nominal voltage of line, physical length of line, wavelength of the line, and power transmitted over the line. Of course, the answer is physical length of the line. So based on the line length, physical length has a unit of meter kilometer. Usually transmission lines are in the of the order of kilometer, and that's why the concept of short, medium, and long line are based on primarily their physical length. So let's recall that we have three categories: short transmission line, medium transmission line, and long transmission line. And their distinguishing numbers are: short transmission line are those line which has length less than 80 kilometers. Of course, if you refer to different literature, you will find this number a bit varied. But so I have followed majority standard textbook and concluded these numbers. Medium transmission line are those line which are having a length of 80 kilometer to 250 kilometer. And long transmission line are those lines which have length of 250 kilometers higher than that.
So the basic idea is to capture their parameters effect. We have gone for this category characterization. So talking about physical parameters, as we have seen in the last lecture, transmission line has three mainly physical parameters: R, which is in ohm per kilometer; L, which is in usually millihenry per kilometer; and C, which is in Faraday per meter. Of course, in kilometer we need to convert, but that's what the unit we have handled. As you can see, we have all these three parameter which is dependent on length. So length will play a crucial role as far as their electrical performance is concerned, and that's why their distinguishing has been done based on the length. Okay, so please remember these numbers, because many a times in question they mention length of the line and then form a question. So while reading the question, it should occur into your head that okay, we have to think about short line or medium line or long line as far as given data processing is concerned. Okay, so this is the basic concept as far as line distinguishing is concerned, line categories are concerned. Now let's go into the detail of the electrical model. Quickly we will go through this and then look at various previous gate questions. So first category is short transmission line. So of course, when line is short, you can make certain approximations. Here the first hand approximation is only series impedance is considered as far as short transmission line is concerned, and that is also in lumped manner. अब देखो lumped और distributed का हिसाब किताब क्या है. तो जब आप एक कंडक्टर लेते हो, इमेजिन करो कोई एक वायर, कोई भी एक वायर मान लो, जो अपने अपने घरों में भी देखा होगा. इवन आप अगर वायर्ड माउस या वायर्ड कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो उसका वायर इमेजिन कर लो, राइट. सो कंसीडर अ वायर 1 मीटर वायर की लेंथ है, तो उसका रेजिस्टेंस तो पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 1 मीटर का रेजिस्टेंस, 1 मीटर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस सिर्फ बीच में ही लगेगा. ऐसा तो नहीं है. समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. जब एक कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस तो थ्रू आउट द लेंथ होगा. तो जब ऐसे रेजिस्टेंस की बात होती है तो हम हमेशा क्या डिस्कस करते हैं भाई, उसका ओम पर मीटर या ओम पर सेंटीमीटर, वो प्रॉपर्टी आप मुझे बताओ, तब जाके मैं इसका अप्रोक्सीमेटेड एनालिसिस करूंगा, राइट. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन पावर सिस्टम. जो कंडक्टर है हमारा, उसका ओम पर किलोमीटर, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, ओम पर किलोमीटर के बारे में बात करते हैं, है ना. सो ये हो गया लम्प्ड अप्रोक्सीमेशन. एक्चुअली कंडक्टर जो है उसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच में लगेगा. तो इसी कंडक्टर को, एक वायर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं. मान लो ये एक वायर है, देखो एक वायर बना रहा हूं स्क्रीन पे, ये एक वायर है, कंडक्टर है, ठीक है, रैंडम शेप में. इसको मैं इलेक्ट्रिकली मॉडल कैसे कर सकता हूं दोस्तों? वेरियस तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं. एक तरीका है मैं ओम पर mm लेके वो सारे ओम कनेक्ट करके उसकी लेंथ बनाऊं, जहां पर मैंने ओम पर mm कंसीडर किया है. दूसरा तरीका है मैं ओम पर मीटर लेके करूं, तो शायद कुछ रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल अप्रोक्सीमेटेड होता जाएगा. ये ओम पर मीटर लिया. अगर मैं ओम पर किलोमीटर लेता हूं तो हो सकता है सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट हो, लेंथ एक ही मीटर है भाई, इसीलिए. तो जो एक्चुअल मॉडल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब रेजिस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड. लम्प्ड मॉडल अप्रोक्सीमेटेड मॉडल है, मतलब थ्रू आउट द लेंथ जो रेजिस्टेंस है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर की तरह ट्रीट करते हैं. तो वो लम्प्ड पैरामीटर लम्प्ड मैनर में हो गया. ओके, तो लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड आई थिंक वो क्लियर होगा. तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है
उसका मॉडल हम कंसीडर करते हैं सिर्फ सीरीज इंपीडेंस और वो भी लम्प्ड मैनर में। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है सीरीज रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू इंडक्टेंस, ये इंडक्टेंस जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया वही होगा। सो दिस इज आर, दिस इज jx, ऑफ कोर्स आर का यूनिट होगा ओम पर किलोमीटर, मैं यूनिट भी लिख देता हूं, इसका यूनिट होगा ओम पर किलोमीटर, और jx का भी यूनिट होगा ओम पर किलोमीटर। ओके, राइट। So this is how we model our short transmission line. अगर r plus jx को z की तरह भी दिखा सकते हैं, r plus jx को z की तरह भी दिखा सकता है, तो भाई टुगेदर दिस इज z। यूनिट ऑफ z इज ऑल्सो ओम पर किलोमीटर। ओके, चलो। सो लम्प्ड पैरामीटर में सीरीज इंपीडेंस कंसीडर किया जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए। ओके, और यहाँ पर मैं वापस मेंशन कर देता हूँ, लेंथ इज लेस देन 80 किलोमीटर। जिस लाइन का लेंथ 80 किलोमीटर से कम है वही शॉर्ट ट्रांसमिशन की तरह मॉडल होगा। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया इसका। अब बात करते हैं एबीसीडी पैरामीटर की। तो दोस्तों नेटवर्क स्टडीज में हम एबीसीडी पैरामीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। एबीसीडी पैरामीटर यूजुअली यूज होते हैं कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर टू पोर्ट नेटवर्क ही तो है, देखो कैसे सर, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है उसको Vs कंसीडर करो, सेंडिंग एंड करंट को Is कंसीडर करो, रिसीविंग एंड वोल्टेज Vr कंसीडर करो, Ir कंसीडर करो। तो यहां पर ABCD पैरामीटर यूज करके इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है। First of all, let's talk about ABCD parameter in general. So ABCD parameter in general, guys, can be given as it gives a relationship between Vs and Is. For power system, you need to remember this equation. Please pay attention. AVR plus BIR. So basically it relates sending in quantities to receiving end quantity. देखो मैं इसको जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो आसान हो जाएगा याद रखना, ठीक है। चलो पहले ये फॉर्म में लिख लेते हैं। इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चा मैट्रिक्स फॉर्म में, Vs Is एक वेक्टर बन गया, दैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, ये एबीसीडी मैट्रिक्स बन गया। देखो आसान ही है याद रखना, Vr Ir, ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया। तो देखो सेंडिंग एंड क्वांटिटी पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और रिसीविंग एंड क्वांटिटी पूरा राइट हैंड साइड आ गया। सो बेसिकली लेफ्ट साइड क्वांटिटीज और राइट साइड क्वांटिटीज को रिलेट करने वाला पैरामीटर एबीसीडी पैरामीटर, और इसीलिए उनका इस्तेमाल करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन का इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस पता करने के लिए। क्लियर है? ग्रेट। तो इंडिविजुअली एबीसीडी की बात करेंगे। देखो इस इक्वेशन से, अब जो बॉक्स कर रहा हूं मैं रेड से बॉक्स कर लेता हूं इसको। इन इक्वेशन को हम बहुत बार रिकॉल करेंगे आज के लेक्चर में, और आपको याद रखना है ये इक्वेशन, इस फॉर्म में याद रखोगे तो आसानी होगी, ठीक है। देखो अब इस इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन से मैं ए की वैल्यू क्या लिख सकता हूं सर? आप ए की वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू Vs अपॉन Vr व्हेन IR इज 0। IR 0 बोले तो सर रिसीविंग एंड करंट 0 कर दो, मतलब ओपन सर्किट। रिसीविंग एंड ओपन सर्किट है, रिसीविंग एंड करंट 0, रिसीविंग एंड करंट 0, तो ए का डेफिनेशन बनता है Vs अपॉन Vr, और इसका नाम बनता है इनवर्स वोल्टेज गेन। वैसे ही C भी मिल जाएगा मुझे, C मिल जाएगा Is अपॉन Vr व्हेन IR इज 0, व्हेन IR इज 0। इसका नाम है शंट एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस। देखो उनके जो रेशियो है, रेशियो से आपको उनका यूनिट भी पता चल जाएगा। ए का यूनिट होगा यूनिटलेस, क्यों? क्योंकि गेन है बच्चा, गेन का कोई यूनिट नहीं होता है। शंट एडमिटेंस, एडमिटेंस का यूनिट होगा मो, और देखो आई अपॉन वी आर भी है तो मो होना चाहिए, बिल्कुल सही।
ओके, बाकी दो बचे, तो बी आर की बात करते हैं, तो बी और डी की बात करते हैं, तो बी का इक्वेशन बन जाएगा Vs अपॉन आई आर, बट व्हेन Vr इज 0। सो गाइस, फर्स्ट केस में हमने रिसीविंग एंड साइड ओपन सर्किट रखा, इस केस में शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि Vr 0 बनाना है, और डी भी मिल जाएगा हमें, डी मिल जाएगा आई एस अपॉन आई आर। बेसिक है, ये बेसिक है। ओके, बी का नाम, अब ये इंपॉर्टेंट है, बी का नाम है सीरीज इंपीडेंस। पावर सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे, इसका यूनिट होगा ओम, और डी इज इनवर्स करंट गेन। इनवर्स करंट गेन यूनिटलेस होगा बच्चा, ये यूनिटलेस होगा। सो ए बी सी डी पैरामीटर की बात हो गई। ठीक है सर, ये क्यों यूज करना है? तो जहां जहां हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट टू पोर्ट पैरामीटर मिलेगा, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके ABCD पैरामीटर से। ये कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क को आप ABCD पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ABCD पैरामीटर उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की प्रॉपर्टीज कैरी करेगा। तो अगर ABCD दे दिए हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में काफी ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई ABCD पैरामीटर की इन जनरल। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ABCD पैरामीटर की बात करते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए ABCD पैरामीटर क्या होंगे? तो बच्चा यहां पर आप डिराइव कर सकते हो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ABCD पैरामीटर। मैं यहां पर बॉक्स में डायरेक्ट रख रहा हूं, ठीक है, डिराइव कर सकते हो, आसान है, या मेरे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में आप उसको पता कर पाओगे, राइट। ABCD पैरामीटर ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 1Z01। ये ABCD पैरामीटर, ABCD मैट्रिक्स ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का ABCD मैट्रिक्स है 1Z01। मतलब A बनेगा 1, B बनेगा Z, C0, ऑफ कोर्स शंट है ही नहीं यहाँ पे, तो C0। देखो सिर्फ सीरीज कंसीडर किया गया है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सिर्फ सीरीज कंसीडर किया गया है, तो फिर C0 बन जाएगा और D1। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर अगर शंट नहीं है तो फेरांटी इफेक्ट नहीं होगा। फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? फेरांटी इफेक्ट सर, अंडर लाइट लोड या नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड और लाइट लोड कंडीशन, my receiving end voltage is more than my sending end voltage। जब ये होता है उसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फेरांटी इफेक्ट। डेफिनेशन ऑफ फेरांटी इफेक्ट, अंडर नो लोड कंडीशन और लाइट लोड कंडीशन, my receiving end voltage is more than sending end voltage, that is called फेरांटी इफेक्ट। ये बेसिकली चार्जिंग कैपेसिटेंस की वजह से एग्जिस्ट करता है। अब यहां पर चार्जिंग कैपेसिटेंस ही नहीं है तो फेरांटी इफेक्ट नहीं होगी। और ABCD पैरामीटर से भी कंक्लूड कर सकते हैं, if A is mod A, if magnitude of A is 1, फेरांटी इफेक्ट neglected, फेरांटी इफेक्ट neglected। Of course, one thing I should remember that यहाँ पर मेरा वीडियो आ रहा होगा तो वो थोड़ा लिखा हुआ कवर हो जाता होगा, राइट। सो यस, नेक्स्ट पोर्शन से इसको ध्यान में रखूंगा। फिलहाल आपको देखना है तो मैं इसको थोड़ा स्लाइड करता हूँ। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। आई ऑलरेडी शिफ्टेड इट, ओके। फ्रॉम नेक्स्ट स्लाइड आई विल कीप दैट इन माइंड। चलो, सो दिस इज अबाउट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात हमने कर ली, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड देयर मॉडल्स क्विकली, ब्रीफली लेट्स डिस्कस।
So series impedance and shunt admittance both are considered in lumped manner. भाई मीडियम और शॉर्ट में डिफरेंस यही है कि शॉर्ट में शंट नहीं था, मीडियम में शंट है. ओके, और कॉमन है कि दोनों में लम्प्ड पैरामीटर ही कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर मॉडल की बात है तो बच्चा यहाँ पर 4 मॉडल होते हैं, 4 मॉडल. ठीक, तो चलो एक के बाद एक जल्दी से सब डिस्कस करेंगे. पहला होगा रिसीविंग एंड साइड कैपेसिटर मॉडल. सो रिसीविंग एंड साइड कैपेसिटर में सीरीज इंपीडेंस होगा और शंट एडमिटेंस बताते हैं. ठीक है, एडमिटेंस होता है, शंट एडमिटेंस रिसीविंग एंड साइड होगा. यहां पर ये है VS IS और ये होगा VR IR. क्लियर है, ये रिसीविंग एंड साइड कैपेसिटर. वैसे ही सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर भी होगा. सेंडिंग एंड, चलो यहाँ पर थोड़ी जगह बच रही है ना, जगह बचा के लिख लेते हैं फटाफट. सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर. सो सेंडिंग एंड साइड कैपेसिटर मॉडल भी आसान है. उसमें जो शंट पैरामीटर है वो सेंडिंग एंड तरफ लगा है. दिस इज माय VS IS IR VR और ये वैल्यू है सीरीज इंपीडेंस शंट एडमिटेंस की. राइट, नेक्स्ट मॉडल इज वेरी वेल नोन, नॉमिनल पाई मॉडल. नॉमिनल पाई मॉडल बच्चा रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो देखो, एक ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें कंसीडर तो लम्प्ड पैरामीटर ही करने हैं, लम्प्ड मैनर में ही पैरामीटर करने हैं, लेकिन आधी लाइन की लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया रिसीविंग एंड से और बाकी आधा पोर्शन जो है उसको सेंडिंग एंड से, और दोनों को अगर कास्केड में बना दिया तो नॉमिनल पाई बन जाएगा. देखो, दोनों कास्केड में मैं इक्विवेलेंट नॉमिनल बना रहा हूं. ठीक है, दोनों कास्केड में दिखे ऐसा बना रहा हूं, दोनों कास्केड में दिखे ऐसा बना रहा हूं. यही बना लेता हूं, जगह बचेगी. हाँ, ठीक है, कौन कौन सा, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड. ये सेंडिंग एंड बना, देखो कितना बीच में बाउंड्री बना देते हैं. एक सेकंड, कास्केड के लिए कनेक्शन भी दिखा देते हैं. देखो यहाँ पर कनेक्शन बन गया है, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करना है, कास्केड में कनेक्ट करना है. आधा लाइन मॉडल कर दिया सेंडिंग एंड से और बाकी आधा कर दिया रिसीविंग एंड से. ठीक, अब आधा कर रहे हैं तो ये Z/2 होगा और ये Y/2 होगा. ये भी आधा है तो Z/2 होगा, Y/2 होगा. अब इन दोनों को कास्केड में करेंगे तो सीरीज Z/2 प्लस Z/2 वापिस Z बन जाएगा, बीच में इसलिए Z रहता है. और साइड वाले दोनों लिम्स शंट एडमिटेंस आर डिवाइडेड इन हाफ. तो मैं वो लॉजिक समझा रहा हूं, लॉजिक से समझेंगे तो क्या रट्टा नहीं लगाना है. एलकॉम में हम कभी रट्टा नहीं लगाते हैं, हम लॉजिक से इसको याद रखते हैं, लॉजिक से इसको समझते हैं. ठीक है, चलो आखिरी वाला है नॉमिनल टी मॉडल. अब दो यहां पर भी कास्केड लगाने हैं लेकिन थोड़े उल्टे. पहले रिसीविंग एंड साइड, पहले हाफ को रिसीविंग एंड साइड, दूसरे हाफ को सेंडिंग एंड साइड, उससे मॉडल कर लो और कास्केड में लगा लो. ठीक है, तो पहला वाला रिसीविंग एंड साइड से मॉडल करो हाफ, सेकेंड हाफ सेंडिंग एंड साइड से मॉडल करो. तो देखो एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस है. तो पहले हाफ में ये Z/2 Y/2, ये भी Y/2 Z/2, और अगर कास्केड में लगे तो जो पैरेलल है वो पूरा Y बन जाएगा. तो इसीलिए आधा हाफ Z
लेफ्ट साइड, z/2 राइट हैंड साइड एंड बीच में बनेगा y। इसको पाई बोलते हैं क्योंकि इसका इक्विवेलेंट पाई जैसा दिखेगा। बीच में सीरीज और दो शंट, इसका इक्विवेलेंट t जैसा दिखेगा। देखो y/2 और y/2 को जब इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करेंगे तो बीच में एक ही शंट दिखेगा, ये t जैसा दिखेगा, तो नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं एबीसीडी पैरामीटर की। तो बच्चा इसका एबीसीडी पैरामीटर मैंने आपको बताया है कास्केड के रूप में ही कंसीडर करना है। देखो एक बाउंड्री यहां बना रहा हूं, एबीसीडी पैरामीटर की बाउंड्री है, ये दो अलग अलग नेटवर्क कास्केडेड है। तो पहला सीरीज नेटवर्क का एबीसीडी तो शॉर्ट ट्रांसमिशन जैसा बन गया, और दूसरा जो है शंट ब्रांच, उसका एबीसीडी बनता है 10y1, और क्योंकि कास्केडेड है एबीसीडी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको आंसर मिल जाएगा इक्विवेलेंट एबीसीडी का। ओके, यहां पर भी दो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, 10y1 मल्टीप्लाइड विथ 1z01। दो नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये रहे कास्केडेड में। यहां पर वैसे तीन बनेंगे, देखो मैं बाउंड्री बना देता हूं, एक शंट वाला, एक सीरीज वाला और एक और शंट वाला, तीन बनेंगे। तो तीन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एबीसीडी देगा। पहला होगा 10y1, दूसरा होगा 1z01, और तीसरा होगा वापस 10y1। बच्चा ये y/2 बनेगा, ये y/2 बनेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि y/2 वैल्यू है ना, z/2 प्लस z/2 तो z बन जाएगा, तो इसलिए यहां पर z आएगा। वैसे ही t का आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्विकली बता देता हूं। ए पैरामीटर देखो, रिसीविंग एंड साइड मॉडल का ए पैरामीटर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, सो 1 प्लस yz। A is not 1, Ferrant effect is considered। सेंडिंग एंड साइड मॉडल में a बराबर 1 मिलेगा, देखो तो 1 इंटू 1 प्लस 0, सो 1 राइट। नॉमिनल पाई मॉडल में हम 1 0 और उसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो नॉमिनल पाई में शंट इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी बनाओ, फर्स्ट रो बनाओ। फर्स्ट रो 1 होगा और ये z होगा 1z, सो 1 प्लस a इज 1 प्लस yz/2 बनेगा भाई, इसमें भी फेरेंट इफेक्ट कंसीडर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। सो इसीलिए यहां पर लिखा है फेरेंट इफेक्ट इज कंसीडर्ड इन स्पेसिफिक मॉडल्स ओनली। सेंडिंग एंड कैपेसिटर मॉडल में हम फेरेंट इफेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमने कैपेसिटर को रिसीविंग एंड साइड नहीं बनाया है, सिर्फ सेंडिंग एंड साइड बनाया है। फेरेंट इफेक्ट रिसीविंग एंड तरफ की इफेक्ट देखता है, अगर कैपेसिटिव इफेक्ट रिसीविंग एंड साइड है ही नहीं तो फेरेंट इफेक्ट मिलेगा ही नहीं। समझ गए? चलो, so this is about medium transmission line. Let's quickly discuss about long transmission line. यहां से काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं बच्चा, प्लीज ध्यान देना। Series impedance and shunt admittance are considered but in a distributed manner. तो देखो क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठाओ, पहले सिर्फ सीरीज लम्प्ड, मीडियम में सीरीज शंट दोनों लम्प्ड, लॉन्ग में सीरीज और शंट लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने, थ्रू आउट द लेंथ पैरामीटर्स होंगे। तो देखो यहां पर सेक्शन बनाए हैं, ये एक सेक्शन ऐसे मल्टीपल सेक्शन कास्केड में कनेक्ट होके ट्रांसमिशन लाइन बनाता है। क्लियर है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल में इंपॉर्टेंट ये है, अच्छा पहले VSVR बना लेते हैं। सो ये अपना VS ही है, ये VR है, ये IS है, वोल्टेज VR, करंट IR।
इसके वोल्टेज करंट रिलेशनशिप काफी फेमस है। उसको डिराइव करने के लिए पहले तो टोटल लेंथ L कंसीडर करेंगे, L किलोमीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L। बीच में यहां पर x इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब रिसीविंग एंड से हमने मेजरमेंट शुरू किया, तो रिसीविंग एंड से 1 किलोमीटर दूर आए तो x की वैल्यू हुई 1 किलोमीटर, राइट, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। वैसे ही x की वैल्यू L किलोमीटर होगी जब हम सेंडिंग एंड तरफ पहुंचेंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर लेंथ। ओके, सो इसको ध्यान में रखते हुए हम वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप बच्चा लिख सकते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में। इसको टेलीग्राफर्स इक्वेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टेलीग्राफर्स इक्वेशन। Telegraphers equations are nothing but Vx is equals to Vr sin cos hyperbolic gamma L gamma x rather Vx लिख रहे हैं हम, प्लस ZC sin hyperbolic gamma x IR और Ix, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले एक बार लिख लो। Ix इज VR अपॉन ZC sin hyperbolic gamma x, गामा इंटू एक्स है, ये गामा इंटू एक्स प्लस cos hyperbolic gamma x into IR. These are nothing but टेलीग्राफर्स इक्वेशन। बच्चा ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो बीच में कोई एक जंक्शन है, तो इस जंक्शन पे वोल्टेज और करंट क्या होगा? बीच में मतलब कोई x किलोमीटर पे x समझ रहे हो ना, x लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से शुरू होकर लेफ्ट की तरफ x की वैल्यू बढ़ रही है। मान लो ये 10 किलोमीटर की लाइन है, 10 किलोमीटर लंबी लाइन है। अगर ये 10 किलोमीटर लंबी लाइन है तो 7 किलोमीटर रिसीविंग एंड से 7 किलोमीटर पे मेरा V और I का वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू मुझे इस इक्वेशन से मिल सकता है। क्लियर है? यहां पर देखेंगे ZC क्या है। सर बहुत सारे आपने अननोन्स इंट्रोड्यूस किए हैं, चलो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ZC की। ओके, ZC, पहले ZC से पहले बात करते हैं ये Z की, स्मॉल z। तो देखो ये स्मॉल z है, वो है सीरीज, मैं लिखता हूं सीरीज इंपीडेंस ऑफ लाइन, सीरीज इंपीडेंस ऑफ लाइन पर किलोमीटर। तो Z का यूनिट होगा ओम पर किलोमीटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पर किलोमीटर ही होगा भाई। और एडमिटेंस, शंट एडमिटेंस पर किलोमीटर, इसका यूनिट होगा मो पर किलोमीटर। ठीक है, ये एक ब्रांच, ये y रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाला स्मॉल z रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अगर ये z और y है तो मैं गामा बच्चा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। गामा का इक्वेशन यहां से लिख सकता हूं, गामा इज स्क्वायर रूट yz, और इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स y और z तो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ओम पर किलोमीटर, मो पर किलोमीटर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, उनका मल्टीप्लीकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो गामा विल बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर उसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो वो होगा अल्फा प्लस जे बीटा। अब अल्फा और बीटा के नाम है। अल्फा इज नोन एज अटेन्युएशन फैक्टर, अटेन्युएशन फैक्टर याद रखने लायक है ये सब।
बीटा का नाम है फेज कांस्टेंट। बीटा का नाम है फेज कांस्टेंट, ठीक है। सो ये याद रखना प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में उसके डिटेल में थोड़ी और बात करेंगे। अब बचता है ZC। ZC क्या है? ZC है कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं क्योंकि वहां पर वीडियो होगा। ZC is characteristic impedance, characteristic impedance। इक्वेशन है स्क्वायर रूट Z बाय Y, स्क्वायर रूट Z बाय Y, स्मॉल लिख लो, स्मॉल z बाय Y, ठीक है। ओम होगा इसका यूनिट, इसका यूनिट ओम होगा। और ZC का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, ठीक है। चलो देखो, तो ZC बच्चा ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस है, एक आइडल इंपीडेंस बोल सकते हैं। अगर मैं अपनी लाइन को इस वैल्यू से टर्मिनेट करूं तो मुझे फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगा। ये दूसरा इक्वेशन है उसका, फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल मिलेगा, आप लेक्चर्स में देख सकते हो। लेकिन ZC से एक और नोशन आता है, एक और अंडरस्टैंडिंग आता है जिसको बोलते हैं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। ZC को सर्ज इंपीडेंस भी बोलते हैं, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, दैट इज V स्क्वायर अपॉन ZC। इसको इस तरह से दिया जाता है, ये वॉट मेगावाट किलोवाट में रहेगा, ओके। SIL बोलते हैं जिसको, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए और क्या बात करनी है? हाँ, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन टेलीग्राफर्स इक्वेशन तो देखा। अब इसी इक्वेशन को अगर x इक्वल टू एल रखूं, देखो x इक्वल टू एल कहां हो रहा है? VS पे। अगर x इक्वल टू एल रखूं तो मुझे VS और IS का इक्वेशन मिल जाएगा और यहां से ABCD पैरामीटर मिल जाएंगे। देखो है कि नहीं बढ़िया? तो VR cos हाइपरबोलिक गामा L, अब x की जगह L रखना है, देखो x की जगह L, तो VX इज VS प्लस ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L IR, और IS का इक्वेशन VR अपॉन ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L प्लस IR, या फिर कॉस हाइपरबोलिक लिख लेते हैं पहले, कॉस हाइपरबोलिक गामा L इंटू IR। तो बच्चा ये ABCD पैरामीटर से कंपेयर करो आप, ABCD पैरामीटर से, तो देखो ये A बन जाएगा, VR को छोड़ के ये मेरा A बन जाएगा, IR का जो भी मल्टीप्लायर है ये मेरा B बन जाएगा, ये A ये B, VR का जो भी मल्टीप्लायर IS के इक्वेशन में ये मेरा C बन जाएगा और ये मेरा D बन जाएगा। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के ABCD पैरामीटर मिल गए। लिख लेते हैं उसको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। कॉस हाइपरबोलिक गामा L ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L 1 अपॉन ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L, और ये बनेगा अगेन कॉस हाइपरबोलिक गामा L। देखो ये गामा L है ना, हाइपरबोलिक के अंदर है, ब्रैकेट में है, कॉस थीटा जैसा है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा जैसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे ABCD पैरामीटर ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसका अप्रोक्सीमेटेड वर्जन ये याद रखोगे तो बेहतर है, 1 प्लस YZ/2, वेर कैपिटल Y है, कैपिटल Y, चलो कैपिटल क्यों लगता है, स्मॉल में ही रखते हैं, तो स्मॉल में रखेंगे तो ZYL स्क्वायर, L लेंथ है,
अपॉन 2, ये a बन गया मेरा, ठीक है, ये बनेगा a, ZL इंटू 1 प्लस YZ L स्क्वायर अपॉन 6, ये b बनेगा। बच्चा ये अप्रोक्सीमेटेड है, लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटेड इक्वेशन, इसका भी यूज होता है न्यूमेरिकल में, ठीक है, अप्रोक्सीमेटेड ABCD, ठीक, ये बन जाएगा YL इंटू 1 प्लस YZ L स्क्वायर बाय 6 सिमिलर, और ये तो सेम ही रहेगा ऊपर वाला 1 अपॉन YZ L स्क्वायर अपॉन 2। ये अप्रोक्सीमेटेड ABCD है। आपको खास करके याद रखना है कौन सा वैल्यू, खास करके A का वैल्यू याद रखना है, बहुत बार आ जाता है इसका इस्तेमाल। A का वैल्यू याद रखिए, उसका इस्तेमाल बहुत बार आ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ABCD पैरामीटर्स की बात कर ली हमने, पिछले स्लाइड पे ही ABCD पैरामीटर्स की बात कर ली, ओके। तो एक बार फिर से लिख देते हैं। देखो यहां पर मैं Z के फॉर्म में लिखता हूं, कैपिटल Z इज स्मॉल z इंटू L। देखो ये ओम पर किलोमीटर में है और ये लेंथ है, ये किलोमीटर में होगा, तो अब Z ओम में होगा, और कैपिटल Y है स्मॉल YL, ये मो पर किलोमीटर में था, L था किलोमीटर में, तो अब Y बन जाएगा मेरा मो में, ठीक। इसके फॉर्म में याद रखना आसान हो जाएगा। तो A का वैल्यू है 1 अपॉन YZ बाई 2, L अंदर एडजस्ट हो गया है, ठीक। ये है Z इंटू 1 प्लस YZ बाई 6, ये है Y इंटू 1 प्लस YZ बाई 6, और ये है 1 प्लस YZ बाई 2। खास करके A का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे, जल्दी देखेंगे। आखिरी पॉइंट बचता है वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेटेड वेव, तुरंत ही न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे इसके बाद। तो देखो वेवलेंथ लैम्बडा इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कैन बी गिवन एज 2 पाई बाय बीटा। सर अब बीटा क्या आ गया, तो रिकॉल करो बीटा, गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा था ना, गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा, ये रहा प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा, बीटा है फेज कांस्टेंट, ठीक। तो वेवलेंथ इज लैम्बडा विच इज 2 पाई बाय बीटा, ओके। वेलोसिटी का यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अब बीटा बच्चा, बीटा का यूनिट क्या रहेगा, बीटा होगा रेडियन पर किलोमीटर, क्योंकि गामा पर किलोमीटर है इसलिए एल के साथ मल्टीप्लाई होके वो हमें रेडियन दे देगा। गामा भी रेडियन पर किलोमीटर, अल्फा भी रेडियन पर किलोमीटर, ठीक है। सो बीटा हमेशा रेडियन पर किलोमीटर होगा। अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहां लिख लेता हूं बीटा एल विल बी इन रेडियन, बीटा एल विल बी इन रेडियन, ठीक है। तो देखो 2 पाई रेडियन है, बीटा रेडियन पर किलोमीटर है, तो लैम्बडा का यूनिट क्या बन गया, लैम्बडा का यूनिट बन गया किलोमीटर, लैम्बडा का यूनिट बन गया किलोमीटर, क्लियर है। वेलोसिटी का इक्वेशन है लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेटेड वेव लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वो यहां से लिख सकते हैं 2 पाई f अपॉन बीटा, वेयर बीटा इज रेडियन पर किलोमीटर, बीटा इज रेडियन पर किलोमीटर, ठीक है। और v का दूसरा इक्वेशन भी है L और C के फॉर्म में 1 अपॉन स्क्वायर रूट L बाई C। यूजुअली प्रोपोगेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी लाइट वेव, प्रोपोगेटेड वेव की स्पीड लाइट स्पीड होती है यूजुअली, बट वो अगेन L और C पे डिपेंड करेगा, L और C का वैल्यू क्या दिया है उससे डिसाइड होगा मेरा वेलोसिटी क्या हो।
क्लियर है? ओके, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। यहां से एक और कॉन्सेप्ट हमें देखना है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट पाई मॉडल, नॉट नॉमिनल पाई, इक्विवेलेंट पाई। बच्चा, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम इक्विवेलेंट पाई मॉडल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बने, तो पाई मॉडल बनाएंगे पहले। तो ये है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का पाई मॉडल, इक्विवेलेंट पाई मॉडल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ओके, सो देखो इक्विवेलेंट मॉडल में ये Z इक्विवेलेंट है, ऑफ कोर्स ये Y इक्विवेलेंट बाई 2, Y इक्विवेलेंट बाई 2, पर Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? Z इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चा मिलेगी ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। हाइपरबोलिक को ब्रैकेट में लिख देता हूं, हाइपरबोलिक के बाद गामा L को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। और Y इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी 1 अपॉन ZC tan हाइपरबोलिक गामा L। देखो हमेशा गामा और L साथ में आएंगे। गामा का यूनिट है रेडियन पर किलोमीटर, उसके साथ किलोमीटर मल्टीप्लाई होगा, तब जाके हम साइन और कॉस के अंदर उसको रखेंगे। तो प्लीज इस तरह से ध्यान रखना, इस तरह से याद रखना, लॉजिक से याद रखना, जैसे मैं बार बार बोलता हूं। ओके, रिमेंबर दिस, ZC तो हमें पता ही है। So this is equivalent pi model for long transmission line. यूज भी होता है ये एनालिसिस के लिए, इसलिए इसको याद रखना। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 2014 गेट 2 मार्क क्वेश्चन। चलो देखो ये निकलता है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन करो। मैं वीडियो को पॉज करके वापस सॉल्यूशन के लिए आएंगे, मैं 2 सेकंड का पॉज ले रहा हूं। ऑल राइट, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबने अपना अपना पूरा एफर्ट लगाया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर 400 किलोमीटर लॉन्ग लाइन, तो डेटा कलेक्ट करते हैं। देखो पावर सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पढ़ा, टेबल बनाया। फॉर 400 किलोमीटर लाइन सीरीज इंपीडेंस इज गिवन। तो देखो बच्चा, ये ओम पर किलोमीटर में है, तो स्मॉल z दिया है। हमने जो डिस्कस किया अच्छे से उसके नंबर्स उसको असाइन करना, पैरामीटर्स। एंड शंट एडमिटेंसेस आर गिवन। शंट एडमिटेंसेस J5.0 माइक्रो है भाई, माइक्रो मो पर किलोमीटर में है। मैग्नीट्यूड ऑफ सीरीज इंपीडेंस इन ओम, ओके, ऑफ द इक्विवेलेंट पाई सर्किट। इक्विवेलेंट, ग्रेट। इक्विवेलेंट पाई सर्किट में Z इक्विवेलेंट अभी थोड़ी देर पहले देखा, ZC साइन हाइपरबोलिक गामा L। चलो तो डायरेक्ट बन गया अब ये क्वेश्चन, है ना? नहीं, इतना आसान नहीं है। चलो जल्दी से देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा, ZC पता कर लेते हैं। ये डेटा लिया हमने, डेटा कैप्चर किया, अब सॉल्व करेंगे। तो देखो ZC बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Z अपॉन Y। जल्दी से निकाल लो Z अपॉन Y, J निकल जाएगा 0.5 अपॉन 5 इंटू 10 पावर माइनस 6। निकालो ये कितना आ रहा है, मैं भी निकाल रहा हूँ। 10 पावर माइनस 5, 10 पावर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर 5, स्क्वायर रूट 10 पावर 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 100। स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू 100 कितना आ रहा है भाई? फटाफट दिमाग में, आधा कैलकुलेशन तो दिमाग में ही करो, अच्छा है। स्क्वायर रूट 10 इंटू 100, 316.23, ठीक है, 316.23 ओम। ZC आया तो एक पैरामीटर मिल गया,
अब चाहिए गामा, तो गामा निकालो। गामा इज स्क्वायर रूट ऑफ वाई, इज मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। गामा एल भी निकाल सकता है, अगर ये गामा एल, अच्छा चलो बाद में एल मल्टीप्लाई कर लेंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। चलो y और z का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन तो देखो एक j बचेगा क्योंकि लॉसलेस लाइन है, तो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 और j बाहर निकल आएगा, j स्क्वायर रूट 2.5 और इंटू 10 पावर माइनस 6 तो है ही, क्यों, क्योंकि सर ये माइक्रो भी तो है, ये माइक्रो भी तो है ना, पर किलोमीटर में आएगा ये, मैंने जैसे ही बोला था रेडियन पर किलोमीटर में आएगा, ठीक। तो चलो ये कितना आ रहा है भाई, 2.5 10 पावर माइनस 3, तो स्क्वायर रूट 2.5 अपॉन 1000 0.0 जे आया 0.001581। तो देखो ये जे है, रियल पार्ट इज 0, तो ये सीधा सीधा बीटा दे दिया है, वैसे देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, जे टाइम्स समथिंग गामा इज इक्वल्स टू जे टाइम्स समथिंग, मतलब ये बीटा वैल्यू मिल गई, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये होगा रेडियन पर किलोमीटर, गामा एल हमें चाहिए, इसी को 400 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया 0.6325 लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर गामा एल इज 0.6325। अब हाइपरबोलिक गामा एल की बात करते हैं, तो सर ये कैसे निकालेंगे। अच्छा, साइन हाइपरबोलिक गामा एल, उसको एक्सपांड कर सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक, पहले साइन, साइन इसको अल्फा, गामा को अल्फा प्लस जे बीटा लिखो, वो आसान हो जाएगा। हाँ, अल्फा प्लस जे बीटा, इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस जे टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, ये कॉस नहीं, अब हाइपरबोलिक नहीं आएगा, हाँ, इनटू साइन बीटा। सो जे कॉमन आ जाएगा, यहां पर अल्फा 0 है, हियर अल्फा इज 0, बीटा का वैल्यू मिल चुका है, बीटा का वैल्यू मिल चुका है, ये जे होगा, यहाँ पर भी ऊपर एक जे आएगा, हाँ ये जे होगा, बीटा का वैल्यू मिल चुका है। तो देखो ये 0 होने की वजह से पहला टर्म 0 हो गया, सिर्फ बचा साइन बीटा, देयरफॉर शायद ये तो दिखेगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा, देयरफॉर z इक्विवेलेंट इज 316.23 इनटू साइन गामा, साइन हाइपरबोलिक गामा एल को मैं लिख सकता हूं अब सीधा सीधा जे साइन बीटा, ठीक, जे साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा है 0.6325, रेडियन में है प्लीज ध्यान रखना, तो साइन 0.6325 इंटू 316.23, बताओ जल्दी जल्दी कितना आया, 186.94, 186.94, कितना पूछा है, कुछ लिखा नहीं है, कितना कितना डिजिट तक लिखना है, सही, आपका सही आंसर बन गया, ओम में पूछा है, सिर्फ 2 डिजिट तक ये ओम में लिख सकते हो, मैच करो, दिस इज द आंसर, यस। सो याद रखने वाला इक्वेशन है ये, ठीक है। और हाँ, ये भी हाइपरबोलिक एग्जाम में पता करने के लिए ये इक्वेशन याद रहना जरूरी है, ज्यादातर लॉसलेस लाइन ही होगा, लॉसलेस लाइन देखो, लॉसलेस लाइन में है ना, ये R और G 0 दे दिए होंगे, अगर R और G 0 है तो आपका साइन हाइपरबोलिक गामा एल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन बीटा,
बस ये याद रख लो, आसान हो गया। ठीक है, लॉसलेस लाइन के लिए साइन हाइपरबोलिक गामा एल इज साइन बीटा, बीटा एल आएगा। ऑफ कोर्स गाइस दिस इज बीटा एल। ओके, बीटा एल आएगा क्योंकि गामा एल है ना, तो बीटा एल आएगा। तो ये बीटा एल ही निकाला है हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई टू अटेम्प्ट इट। आई एम वेटिंग फॉर 2 or 3 seconds। मीनवाइल पॉज करो, अटेम्प्ट करो और वापस प्ले करो जब आप सॉल्यूशन के साथ तैयार हो। चलो all right, let's begin with the solution। तो सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। 220 kV 20 किलोमीटर, सो वोल्टेज रेटिंग है 220 kV। ठीक है, एक बार 20 किलोमीटर तो लिख ही लेते हैं, वोल्टेज की बात बाद में देखते हैं। 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन एज ABCD कांस्टेंट गिवन। देखो ABCD गिवन है, ठीक है। एक बार मुझे वैल्यू दिख रही है, मैं सारी वैल्यू लिख नहीं रहा हूं, टाइम क्यों बर्बाद करना है। ABCD दे दिया है, ए और डी का यूनिट नहीं होगा, बी ओम पर फेज है, दैट्स ओके, और सिमेंस पर फेज है, मो या सिमेंस। सिमेंस है मतलब लॉसलेस, वो जी कंसीडर नहीं किया है तो सिमेंस पर ओम फेज, दैट्स ओके। ओके, इट्स करेक्ट। चार्जिंग करंट पर फेज इज डैश, ऑसम। चार्जिंग करंट पर फेज इज डैश। बच्चा चार्जिंग करंट पूछा है, तो चार्जिंग करंट पर फेज हाउ मच। अब चार्जिंग करंट क्या होता है, देखो मैं क्या बोला था, पावर सिस्टम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इक्वेशन से ज्यादा स्टोरी क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, स्टोरी ये बोलता है सर चार्जिंग करंट होता है जब ट्रांसमिशन लाइन पे कोई लोड नहीं लगा है, व्हेन ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन। whenever transmission line is operating at no load condition, the current drawn from source is known as charging current. No load current of transmission line is charging current। सिंपल है। तो नो लोड करंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैसे पता करेंगे, बेसिकली आपको पता करना है IS नो लोड, दैट इज I चार्जिंग। तो सिंपल है, क्या करेंगे सर, इक्वेशन लगा देंगे ABCD पैरामीटर का। देखो IS का सेकंड इक्वेशन, IS रिकॉल करो, IS क्या होता है, IS होता है CVR प्लस DIR। ओके, यहां पर IR 0, क्यों IR 0 सर, चार्जिंग करंट मतलब नो लोड पे, नो लोड पे मतलब IR शुड बी 0, नो लोड मतलब IR 0। तो आपका बन गया IS नो लोड इज CVR नो लोड, VR नो लोड। रेटेड वोल्टेज दिखेंगे हमें, रेटेड वोल्टेज है 220, बट बच्चा एक ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ABCD इक्वेशन लिखो, ABCD पैरामीटर इक्वेशन कंसीडर फेज वैल्यूज, सारी वैल्यू फेज वैल्यू होनी चाहिए। तो VSB फेज, ISB फेज, VR IR दोनों फेज, सारे वैल्यू फेज हो तब जाके ABCD इक्वेशन रखेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर VR नो लोड बट वो भी फेज वैल्यू होनी चाहिए। सो यहां से आंसर मिल जाएगा, C वैल्यू क्या दिया है 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 220 kV बट फेज में डिवाइड बाय √3। पावर सिस्टम में थंब रूल, जो वोल्टेज 3 फेज वोल्टेज में है और सिर्फ वोल्टेज मेंशन किया है, ये हमेशा 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 लाइन टू लाइन RMS होगा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हमेशा लाइन टू लाइन RMS होगा 3 फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, ये कन्वेंशन है पावर सिस्टम में। ओके, चलो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो। अच्छा, तो
अच्छा अच्छा, ऑप्शन देख के तो बहुत ही आसान है। देखो केवीए और एक जीरो, केवीए और एक जीरो मिला के 10⁻⁻⁴ तो कैंसिल कर लेगा, बच्चा 22√3 हाफ, आंसर सीधा बैठ गया 11/√3 एम्पियर, विच इज चार्जिंग करंट। यही चार्जिंग करंट होगा नो लोड में, वही डेफिनेशन है। स्टोरी 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 से लिंक बैठेगा, जो मैं पहले सेशन में बोला था ना कि डेटा पढ़ो, उसके बाद प्रोसेस कैप्चर करो और प्रोसेस करो, उसके बाद मैप बनाओ और उसके बाद इक्वेशन लगाओ। तो ये मैप बनाने के लिए स्टोरी बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी इक्वेशन आपको ये मिलेगा कि और इस इक्वेशन को लिंक कर पाओगे सही आंसर तक। तो यहां पर आंसर है ए। कितने बच्चों का आ गया, जितने बच्चों का आंसर सही आया कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो बच्चा फेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखा होगा, देखो आयरनी देखो, गलत वाला आंसर भी बैठा है। जो बच्चा लाइन टू लाइन करके सॉल्व कर लिया होगा उसके लिए 11 एम्पियर आंसर में बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एबीसीडी पैरामीटर के लिए सारे वैल्यूज फेज कंसीडर करने हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। गलती हुई कोई बात नहीं, गलती दोहरानो मत, वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से निकालो, फोड़ दो इस वाले को, ये वाला फोड़ दो इसको। ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूं। पॉज द वीडियो, read the question, try to attempt it. I will wait for few seconds. All right, all right, let's solve this. फोड़ देते हैं इसको, चलो मिलके फोड़ते हैं। आपने खुद से तो कोशिश की होगी, मिलके करते हैं। ABCD पैरामीटर ऑफ थ्री फेज ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आर गिवन। ठीक है, अभी सामने दिख रहा है इसलिए मैं वैल्यूज रिपीट नहीं कर रहा हूं, डेटा बना दे रहा है। At no load condition, a shunt inductive reactor at no load condition है, okay, but a shunt inductive reactor is connected at receiving end, मतलब एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा है लेकिन इंडक्टर लगा है। शंट इंडक्टर रिएक्टर, शंट रिएक्टर लगा है, तो एग्जैक्ट नो लोड कंडीशन नहीं है। IR इज नॉन जीरो। देखो नो लोड लिखा है लेकिन एक शंट पैरामीटर कनेक्टेड है, तो एक्चुअली नो लोड नहीं बोल सकते, IR जीरो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारों ने गलती की होगी, जो आंसर भी मिलेगा ऑप्शन में, गलती नहीं करेंगे। चलो, connected at receiving end of the line to limit the receiving end voltage to be equal to sending end voltage। तो यहाँ पर receiving end voltage is सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखो अब कंपनसेशन वाला एक टॉपिक है जो हम नेक्स्ट सेशन में वही करने वाले हैं, वहां से लिंक होगा कि क्या हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन नो लोड पे ऑपरेट हो रहा है तो डेफिनेटली फेरेंटी इफेक्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि A इज नॉट 1। मैंने क्या बोला था? A इज नॉट इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज फेरेंटी इफेक्ट प्रेजेंट, फेरेंटी इफेक्ट प्रेजेंट। अगर फेरेंटी इफेक्ट है तो नो लोड पे आपका वोल्टेज बढ़ना चाहिए। कहां पर? रिसीविंग एंड पर। रिसीविंग एंड पर नो लोड पे वोल्टेज बढ़ जाएगा, लेकिन उस वोल्टेज को कम करने के लिए आपको इंडक्टर लगाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर कंज्यूम करके बूस्टेड वोल्टेज को रेंज में लेके आएगा, Vs के बराबर लेके आएगा। ये स्टोरी हम नेक्स्ट सेशन में तो करने ही वाले हैं। ठीक, यहाँ पर एग्जैक्ट नो लोड कंडीशन नहीं है, एग्जैक्ट नो लोड कंडीशन नहीं है। अगर आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, ABCD ट्रांसमिशन लाइन का, और यहाँ पर एक शंट रिएक्टर लगाया गया है, या फिर ऐसे नहीं, देखो यहाँ पर लोड तो नहीं है, ये लोड नहीं है लेकिन शंट रिएक्टर लगाया गया है, तो इसकी वजह से IR फ्लो करेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया भाई? जिसने भी किया, सिंपल सी चीज है सर, ABCD पैरामीटर फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे।
पूछा क्या है, ओमिक वैल्यू ऑफ सीरीज रिएक्टर, तो इसका ZL पूछा है। लेकिन एक चीज क्लियर है सर, ZL इज टू पोर्ट नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो VR अपॉन IR होगा। रिसीविंग एंड पे इनपुट करंट और वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो बनेगा ZL, टू पोर्ट नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन अगर अप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा VR इज इक्वल्स टू AVR प्लस BIR, और इस इक्वेशन से VR अपॉन IR में लिख सकता हूं। देखो सारे फेज वैल्यू लेनी है, बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर मुझे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। VR अपॉन IR विच इज माई ZL, क्या है ये, रिएक्टर का इम्पिडेंस, ये बन जाएगा B अपॉन 1 माइनस A। बहुत ही सिंपल है, देखो ये इक्वेशन याद रखने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसको रट्टा लगा लेते हैं। बच्चा ये हर केस में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ ये वाला कंडीशन है ना तभी काम आएगा, तो रट्टा मत लगाओ प्लीज, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ये इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट से लॉजिक से बना है उसको याद रखो, वहां से वर्कआउट करो, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे दे दी है, अब बस अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बचा है, सिर्फ B की वैल्यू है। तो देखो ये क्या क्या हुआ, डेटा गैदर किया, प्रोसेस किया, मैप बनाया, अब इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे 4th स्टेप। मैं वापस रिफर कर रहा हूं, जो बच्चा पहला लेक्चर नहीं देखा है पहला लेक्चर देखो। अपॉन 1 माइनस 0.9 एंगल 0 रियल है, तो आंसर क्या आ गया, नीचे लिखते हैं, आंसर आ गया बच्चा 0.1 2000 J2000। ऑफ कोर्स इंडक्टर है तो ZL इज प्योर इंडक्टर की बात कर रहे हैं, ZL शुड बी J2000, आंसर इज P। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये इक्वेशन याद रखना नहीं है, ये इक्वेशन याद रखना है, कंडीशन सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक केस में है गड़बड़ हो जाएगी। चलो ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समय ले लो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालो, हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। all right, let's begin the solution. So extra high voltage transmission line length 300 km by long line है definitely 300 km greater than 250, approximated by a lossless line having propagation constant beta 0.00127 रेडियन पर किलोमीटर, जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूं बीटा रेडियन पर किलोमीटर में होगा। परसेंटेज रेशियो ऑफ लेंथ, परसेंटेज रेशियो ऑफ लेंथ टू वेवलेंथ विल बी डैश, परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा का डायरेक्ट इक्वेशन लग जाएगा 2 पाई अपॉन बीटा, बीटा रेडियन पर किलोमीटर में, 2 पाई रेडियन में है तो लैम्बडा किलोमीटर में मिल जाएगा। तो बताओ बीटा कितना है, 2 into pi upon 0.00127, 4947.39 किलोमीटर, लैम्बडा मिल गया। तो परसेंटेज रेशियो तो आसान है भाई, 2008 में दिया होता तो 1 मार्क तो नक्की था, 2008 में गेट दिया होता एक मार्क तो पूरा 100% श्योर। सो परसेंटेज रेशियो हो जाता था 300 किलोमीटर, 4947.39 किलोमीटर इंटू 100, इनवर्स इंटू 300 डिवाइड बाय 4947.39 इंटू 100 6.063। चलो डी मैच कर गया भाई, सही है, आंसर है 6.063%। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब है अगर आपने वेवलेंथ ठीक से निकाला, ठीक।
चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे, जल्दी से 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, जल्दी निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करो, जल्दी निकालो, रीसेंट क्वेश्चन है। चलो निकालेंगे। चलो 3-phase 50 Hz 400 kV transmission line is 300 kilometer long. So 400 kV rated, 300 kilometer long. Line inductance is given 1 millihenry per kilometer per phase. Capacitance is given 0.01 microfarad per kilometer per phase. The line is under open circuit condition at the receiving end and energized with 400 at the sending end. The receiving end voltage in kV will be dash. VR पता करना है, VS दिया है, IR 0 है। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप लोगों ने तो कोशिश की होगी, सोचो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चा सबसे पहले हमें A पता करना पड़ेगा। क्यों A? सर नो लोड कंडीशन है, तो रिकॉल करो मैप। VS is AVR plus BIR, that implies VS no load is A times VR no load, क्योंकि IR 0 है, IR 0 है। तो A दिया है नहीं दिया है, लेकिन पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी। तो बच्चा A का वैल्यू लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बोला था, A is 1 plus YZ by 2, A is 1 plus YZ by 2, 1 plus YZ by 2, YZ कैसे निकालेंगे? सो L और C दिया है YZ, ओके, लॉसलेस भी बोला है, ओके, लॉसलेस YZ। बच्चा लॉसलेस YZ के लिए ये बन जाता है 1 प्लस बीटा है, चलो लिखता हूं 1 प्लस गामा स्क्वायर बाय 2 बना ना, ये YZ मतलब गामा स्क्वायर L स्क्वायर कैपिटल Y है, तो गामा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, और लॉसलेस के लिए ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। सो बेसिकली बीटा चाहिए। अब A पता करना है, मतलब बीटा पता करना है। बीटा कैसे निकालेंगे? तो V इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ L अपॉन बीटा। अब बीटा रेडियन में हुआ, अगर ऊपर L मल्टीप्लाई कर लिया तो ठीक। तो V इज 2 पाई एफ एल बीटा, और V का वैल्यू है 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC। देखो कैसे फ्लो बना है, ये हायरार्की देखो। तो यहां से बीटा मिल जाएगा, बीटा इज 2 पाई एफ एल स्क्वायर रूट LC। ये वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। चलो निकालते हैं L और C। 1 मिली, अच्छा मिली और किलो, किलो उसको किलोमीटर L से कैंसिल होगा, ओके। तो किलोमीटर तो निकल आएगा, किलोमीटर का दिक्कत नहीं है, मिली माइक्रो को कंसीडर करना पड़ेगा। सो 1 मिली 0.01 माइक्रो, उसको अगर 10 नैनो बना लेते हैं तो -12 6 स्क्वायर रूट 10 into 6 2 into pi 50 20. Okay, let me match point
29, राइट. दिस इज बीटा एल, उसके बाद उसको एल से मल्टीप्लाई भी करना है. सो ओके, इनटू 300, 0.298 ये बीटा एल आ रहा है भाई मेरा. चलो एक सेकेंड, बीटा लिख लेता हूं पहले. बीटा आ रहा है 993.45 10⁻⁻⁶. तो बीटा एल क्या बनेगा? बीटा एल बनेगा 0.298. ये बनेगा रेडियन पर किलोमीटर. तो बीटा एल अब आ गया रेडियन. तो ए मिल गया. अब ए मिल गया, साइड में कैलकुलेट कर रहा हूं, देखो. ए इज 1 प्लस 29 का 0.29 स्क्वायर बाई 2, 0.298 divided by 2 plus 1, it is 1 plus 0.44. Right, inverse into BS 400, 382.99, 0.95, 0.29 गलती किया, 0.298 into 0.298 divided by 2. ओके. फोर ये 1 माइनस आ रहा है, 1 माइनस जी स्क्वायर. यस. सो ये गामा स्क्वायर जे स्क्वायर की वजह से बच्चा ये माइनस हो जाएगा. यस, जे स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा ना. हाँ, तो ये बन गया 0.9556. इसका इनवर्स करेंगे इनटू 400, 418.58. now it's correct. Therefore VR is VS upon A, and that is 418.58. क्लियरली फेरेंट इफेक्ट देखो, नो लोड कंडीशन में मिल रहा है फेरेंट इफेक्ट. फेरेंट इफेक्ट 400 इनपुट है, 418 आउटपुट है. क्लियर है. यहां पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा, और जे स्क्वायर की वजह से -1 हो जाएगा. सो 1 माइनस. एंड ए, वन थिंग ऑल्सो यू कैन रिमेंबर, ए वैल्यू अगर फेरेंट इफेक्ट है तो ए वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1. क्लियर है. चलो, जे की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 बात करेंगे आगे. कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन. जनरलाइज सर्किट कांस्टेंट ऑफ 3 फेज 220 kilovolt rated voltage medium length transmission line are given. If load at the receiving end is given with a power factor, then magnitude of line to line sending end voltage should be dash. जल्दी से सॉल्व करो इसको, पॉज करो, सॉल्व करो और जल्दी से आओ. मैं वेट कर रहा हूं 2 सेकेंड. अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. कम ऑन. इसके बाद एक आखिरी टॉपिक बचता है. Okay, let's begin. Generalized circuit constant 220 kV rated. So let's collect the data. 220 kV rated medium length transmission line are ABCD are given. If load के पैरामीटर्स दिए है बच्चा 50 मेगावाट
220 kV, receiving end 220 kV है with a power factor of 0.9 lagging. Okay, मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन टू लाइन सेंडिंग एंड, ओके, लोडेड कंडीशन में सेंडिंग एंड पूछा है. सो हिंट क्या मिलता है? हिंट मिलता है सिंपल, Vs इज AVR प्लस BIR लगाना है. उसमें आपको A का वैल्यू दे दिया है, B का वैल्यू दे दिया है, VR का वैल्यू भी दे दिया है, IR नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा. ठीक, चलो निकालते हैं बस. लेकिन ये वापस मैं रिकॉल कर रहा हूं, ये सारे फेज वैल्यूज होने चाहिए, सारे फेज वैल्यूज कंसीडर करने हैं. तो VR लाइन टू लाइन होगा, फेज वैल्यू क्या बनेगा? 220/√3. ओके, पहले IR की वैल्यू पता करते हैं. IR कैसे मिलेगा बच्चा? ये बहुत बार आप एक्सपीरियंस करोगे मशीन्स में, पावर सिस्टम में. लोड के पैरामीटर हमेशा पावर और वोल्टेज के फॉर्म में दिए होंगे. लैगिंग पावर फैक्टर, पावर में मेगावाट केवीए कुछ भी हो सकता है. तो यहां से IR आसानी से निकाल पाएंगे हम. कैसे? इक्वेशन लगाओ, P इज इक्वल्स टू √3 VLIL cos phi, थ्री फेज रियल पावर इक्वेशन. इसमें ये 50 मेगावाट दे दिया है, तो दैट इंप्लाइज I लाइन. बट अगर वोल्टेज को √3 कर रहे हो स्टार कंसीडर करके, तो करंट फेज ही मिलेगा. सो IR का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा बच्चा. यहाँ पे क्या मिलेगा? 50 मेगावाट अपॉन √3 इंटू 220 kV इंटू cos phi. देखो लाइन टू लाइन, VL स्टैंड्स फॉर लाइन टू लाइन, तो इस इक्वेशन में लाइन टू लाइन वोल्टेज लगेगा. सो 50 अपॉन √3 220 0.9 0.1457 किलो एम्पियर. ये मैग्नीट्यूड मिला. और एंगल भी मिल सकता है. अगर वोल्टेज को VR इज 220 एंगल 0 kV रेफरेंस मान लिया, तो करंट क्या मिलेगा? करंट फेजर मिल जाएगा 0.1457 एंगल cos इनवर्स ऑफ 0.9. क्योंकि लैगिंग है, करंट के लिए लैगिंग करंट का एंगल आ जाएगा माइनस. सो cos इनवर्स ऑफ 0.9. बच्चा ये ट्रांसफॉर्मर में, मशीन में, सब जगह यही करना है. हमेशा लोड से करंट एंगल, करंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. cos इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ 0.9 25.84. सो ये आ रहा है 0.1457 24.84 डिग्री. ये किलो एम्पियर में है, प्लीज रिमेंबर. ओके, ये किलो एम्पियर में है. ओके, ये किलो एम्पियर. नाउ अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे Vs. तो इस इक्वेशन को लगाएंगे. ये इक्वेशन में सारे फेज वैल्यू होने चाहिए. तो Vs का वैल्यू होना चाहिए 0.936. पोलर में रखो, दिया है तो अच्छी बात है. इंटू VR बच्चा हो जाएगा 220 डिवाइड बाय √3 एंगल 0 है, अच्छी बात है, प्लस B भी पोलर में दे दिया है 142 एंगल 76.4. और I निकाला है हमने, I एंगल के साथ रखना है. जो बच्चा एंगल भूल गया है आंसर नहीं मैच करेगा. ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए. बताओ कितना वैल्यू आया? ये
0.23 एंगल कितना आ रहा है? एंगल आ रहा है 7.77, करेक्ट, 7.77 केवी। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, ग्रेट सर, आंसर मैच कर गया। गलत, आंसर मैच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि बच्चा, मैंने क्या बोला था, एबीसीडी फेज देगा। ये फेज वैल्यू मिली है हमें। कौन सा पूछा है? हमें लाइन टू लाइन पूछा है। लाइन टू लाइन के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 133.23 इंटू √3, 230.78। आंसर इज सी। आंसर इज सी, phase, and that implies VS line to line is √3 into 133.23. Answer is 230.76 kV। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन आखिरी टॉपिक है। क्विकली लेट्स डिस्कस दिस। So voltage regulation basically पैरामीटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, या ट्रांसफार्मर हो या जनरेटर हो, वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन होता है जहां आउटपुट क्वांटिटी वोल्टेज में हो। सो वोल्टेज रेगुलेशन इन जनरल इज डिफाइंड एज VR नो लोड माइनस VR फुल लोड अपॉन V रेटेड इंटू 100%, और वो भी इनका मैग्नीट्यूड इन जनरल। और इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं VS अपॉन A। क्यों? क्योंकि बच्चा ABCD इक्वेशन से VR नो लोड इज VS अपॉन A माइनस VR फुल लोड अपॉन V रेटेड इंटू 100%। For short transmission line, voltage regulation, ये परसेंटेज में है, सब परसेंटेज में 100% लिखा है इसलिए। For short transmission line, A is 1, रिकॉल करो। तो इसीलिए ज्यादा बच्चे क्या यूज करते हैं? ज्यादा बच्चे ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सर वोल्टेज रेगुलेशन मतलब V सेंडिंग माइनस V रिसीविंग अपॉन V रेटेड। बच्चा ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सही है। जो ब्लैक में ऊपर लिखे है वो वोल्टेज रेगुलेशन का डेफिनेशन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्योंकि A इक्वल टू 1 है, आप ये इक्वेशन लगा सकते हो, V सेंडिंग माइनस V रिसीविंग अपॉन रेटेड। ओके, नॉर्मली रेटेड वोल्टेज विल बी फुल लोड वोल्टेज, और इसलिए वो फुल लोड इक्वेशन आएगा। ओके, इसके और भी वर्जन है। परसेंटेज रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, cos phi r प्लस और माइनस परसेंटेज रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप sin phi r। कैसे डिराइव होता है? डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर आपको देखना चाहिए, राइट? मेरे सेशंस अटेंड करोगे, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। परसेंटेज r इंटू cos phi r प्लस और माइनस परसेंटेज x इंटू sin phi r। बच्चा यहां पर याद रखने वाली बात यह है, प्लस फॉर लैगिंग लोड, माइनस फॉर लीडिंग लोड। प्लस और माइनस लिख रहा हूं ना, तो लोड के पैरामीटर, लोड के पावर फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा। आइडियली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होना चाहिए। आइडियल वैल्यू VR शुड बी 0, जितना कम उतना अच्छा। ठीक, यहां से और भी डिस्कशन हुआ है क्लास में, हम बिल्कुल करते हैं, उसको रिकॉल करेंगे। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन will occur when my transmission line, when my power factor angle is transmission line angle,
और उसकी वैल्यू होगी परसेंटेज Z। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू है परसेंटेज Z। ये कब होता है? जब ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर लोड पैरामीटर से मैच करते हैं, एंगल बेसिकली। ओके, जीरो voltage regulation will occur for leading power factor, only leading power factor। और आखिरी पॉइंट, voltage regulation at UPF is percentage R। ठीक है, हमने इतने पॉइंट्स डिस्कस किए थे, रिकॉल करो। चलो, इनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन निकालो। Solve this question. I'm waiting for 2 seconds. Okay, all right, let's begin. ABCD constants are given, 220 line rating are given. If sending end voltage of line for a given load delivered at nominal voltage, so load delivery given है, load delivery given is 220। okay, anyways ये load value नहीं दी है, load value are load delivered at nominal value 240। so भाई rated condition है, पहले तो given load rated condition VR के लिए है 240 kV। परसेंटेज रेगुलेशन निकालना है। अब परसेंटेज रेगुलेशन क्या होता है? परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इज VR नो लोड माइनस VR फुल लोड अपॉन V रेटेड इंटू 100%। VR नो लोड नहीं दिया है, लेकिन दूसरा वर्जन है बच्चा VS जो दिया है अपॉन A माइनस VR फुल लोड ये दे दिया है, ये नो लोड होगा राइट, VS एंड V रेटेड इंटू 100%। तो VS नो लोड कितना होगा रेटेड? 220। VS रेटेड 220 दिया है, 240 दिया है, डिलीवर्ड एट नॉमिनल वोल्टेज। दिस इज VS। so 240 अपॉन A is 0.94, मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, माइनस 220 kV, सब कुछ kV में है, अपॉन 220 kV इंटू 100%। कितना आ रहा है ये आंसर? 240 अपॉन 0.94 माइनस 220, इट इज कमिंग एज, नीचे लिखता हूं मैं, 16.054%, nearly equal to 16। correct, C is correct answer, C is correct answer। clear है? So I think with this note let's end today's session। there are few questions for self practice, इनको सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। if any doubt feel free to reach out via in the comment section। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो दोस्त आपको लगता है कि जो दोस्त इसकी जरूरत में है, जिसको ये हेल्प कर सकता है, हेल्प अस टू रीच आउट टू देम। ये वीडियो उनसे शेयर कीजिए। लिंक, फर्स्ट लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सेकेंड लेक्चर आप पढ़ रहे हो, थर्ड लेक्चर अब नया लेक्चर नए चैप्टर के साथ लेके आऊंगा। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे
compensation, voltage control, reactive power compensation and power factor control. नेक्स्ट सेक्शन पूरा इस पे होगा, काफी अच्छे न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, ये टॉपिक पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो विद दिस नोट लेट्स एंड टुडेज सेशन. इट्स अ गुड बाय फ्रॉम हेलकॉम इंस्टीट्यूट. लेट्स मीट इन नेक्स्ट सेशन. ओके, चलो ध्यान रखिएगा और दम लगा के प्रैक्टिस कीजिएगा. चलो.